Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So in the midst of the 13th chapter we just started, completed 4 verses. So we are starting from the 5th verse. So taking a fast recap, we had discussed last week how did Vyasdev, Valmiki Muni and all those various great sages who wrote the scriptures, who wrote the Mahabharata and all that, they were not physically present but still they know how it happened. So it is said by Acharyas that Lord displays the whole Leela. In fact, Lord takes them to the Leela and shows them everything even before the Leela can ever happen. ये खासियत है भगवान. And Surdas ji was blind, but फिर भी he could see everything. So एक बार राधा रानी asked Krishna कि सूरदास जी को कुछ दिखता नहीं है मगर सब लीला जानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता है. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो कृष्ण भगवान कहते हैं सी ही इज राइटिंग इन दिस छंद, पहले ही लिख देते हैं, वो लीला मैं पहले उनको दिखा देता हूँ, उसके बाद वो लिखते हैं, उसके बाद मैं करता हूँ. आई डू द लीला आफ्टर आई हैव शोड इट टू माई डिवोटीज. सो दैट इज स्पेशलिटी. इसके लिए भगवान हमेशा जो अपने शुद्ध भक्त हैं उनको अपनी लीला का दर्शन कराते हैं, मगर शुद्ध बनने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, भौतिक चीजों को त्यागना होगा. और हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों नैया में पाँव रखने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, डूबना गारंटी. क्यों? एक ना एक नाव तो सरकेगी और आप बीच में डूबोगे. तो आप अगर एक नाव में बैठने की कोशिश करोगे तो बेहतर रहेगा, और भौतिक या आध्यात्मिक, पर दोनों नाव में बैलेंसिंग, इट विल बी लाइक rope up with a stick in your hand, and anytime you will lose your balance and fall down. So let's start with verse number 5, 1.13.5. Who can read? Yes. With great delight they all approached him as if life had returned to their bodies. They exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. Krishna is entering Dwarka. After the war is over, Krishna is entering Dwarka. द्वारका में आ रहे हैं कृष्ण, और क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं. कंटिन्यू. Due to anxieties and long separation, they all cried out of affection. King, विदुर को, हाँ सॉरी, विदुर को, सॉरी, आई एम सॉरी, विदुर को. King Yudhishthira then arranged to offer sitting accommodations and a reception. Yes. So King Yudhishthira and all the others are giving sitting accommodation to him. Okay, next. After Vidura ate sumptuously and took sufficient rest, he was comfortably seated. Then the king began to speak to him, and all who were present there listened. So it was, Vidura was welcomed, then Vidukara was given nice sumptuous food, and then after some rest people started speaking. आजकल आप जाओगे घर पे तो पहले आपको पूछा क्या के लिए, why have you come, what is the purpose? Please continue. Maharaj Yudhishthira said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." Does anyone remember which Leela is Yudhishthira Maharaj referring to? Laksha. So he is saying, first and foremost, my dear uncle, do you remember how you always protected us? हमेशा आपने हमको बचाया, जब हम तकलीफ में थे आपने हमको बचाया. From all sort of calamities, सब problems में से आपने बचाया. You partially, like the wings of the bird, saved us from poisoning and arson. याद रखना, ये bird actually refers to Jatayu's brother Sampati. The story comes, I'll come to the story of Lakshagriha. Before that, let me complete it. With the wings, how does a bird save? एक पक्षी कैसे बचाता है? तो
once our Jatayu was young, that time young and dynamic. So he and his brother, they both placed a race. चलो एक रेस लगाते हैं. क्या रेस लगाएंगे? चलो जाके हम लोग सूर्य को टच करके आते हैं. And they were powerful. They were related to Garuda. Both Jatayu and Sampati were related to Garuda. तो बोले ठीक है. तो both started flying towards the sun. और जब सूरज के बहुत नजदीक पहुंच गए, सूरज का वो तेज जो था उससे उनके पंख जलने लगे. जटायु के पंख जलने लगे. तो बड़ा भाई संपाति होने की वजह से उसने क्या किया? उसने अपने पंख उसके भाई के ऊपर रख दिए, जिसकी वजह से उसके पंख जल गए. संपाति के पंख जल गए, पर जटायु के पंख बच गए. एंड दैट इज द रीजन, जले हुए पंख के साथ वो जाके गिरा उसी जगह पे, एट द टिप ऑफ इंडिया. एंड तभी से वहीं बैठा. He was waiting for a bhakta to come and give him the news. When he will give the news means when he gives service to the Lord, he will get new wings. जब भगवान को वो सेवा देगा तो उसके और नए पंख आएंगे. So that is the reason why this, like the wings of a bird, saved us from poison and arson. मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बचा. उसी तरह है यहां पे लाक्षागृह, वेरी इंपॉर्टेंट लीला. Kauravas were bent upon killing the Pandavas. Their only plan was to kill the Pandavas. किसी भी तरह उनको खत्म करना है. Because they were envious. Because they were better in all respects. सभी क्षेत्र में वो लोग आगे थे. सबसे बड़ा चीज तो कृष्ण उनके साथ. तो उन्होंने बचपन से एक ही उनका लक्ष्य था कि किस तरह से पांडवों को खत्म किया जाए. तो कई बार कोशिश की. एक बार तो भीम को जहर खिला के पानी में डाल दिया था, लड्डू में जहर मिला के. उल्टा भीम उल्टा और ताकतवर बन के बाहर आया. पहले 10,000 फिर 1 लाख हाथियों का ताकत लेके बाहर आया. सो whatever happened for him in the bad, they tried to do bad, only good happened. Finally they had a plan. लाक्षागृह मतलब लाख का घर बनाया. लाख मतलब wax. It's a wax. It's a kind of wax. हाँ? मृदंग पे भी लगा. Yes. तो उस धातु, उस चीज का घर बनाया था. पूरा घास फूस और घर के नीचे पॉट्स ऑफ घी रखा गया था. कौरवों का प्लान क्या था? जैसे ही ये पांडव वहां उस घर में थोड़ा सेटल हो जाएंगे, उस घर को आग लगा देंगे और वो लोग पूरे जल के मर जाएंगे और हम लोग भी हा हा हू करके रोएंगे. तो अपना काम भी पूरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं आएगा. सो मर्डर प्लान्स आज नहीं, उस जमाने से मर्डर प्लानिंग was done from those days. So when he said this, he said fine. Now when they were all about to leave Viduraki, everyone was bidding bye bye. Have a nice vacation in the jungle. Because Lakshagra was in the jungle. तो सब लोग बाय बाय करने आए. तब विदुर आया और उसने बोला, चूहा जो है ना, क्या बोला उसने? चूहा जो है वो अपना बिल हमेशा तैयार रखता है. Rat always keeps its burrow ready. This he told Yudhishthir. Because when fire comes, rats have their burrows ready and they can run through the burrows. When this was heard by Yudhishthir, Yudhishthir was very smart, he was intelligent. He understood, when there is fire in the house, the rats run away. Now here we are the rats. And house is going to be on fire. एक ना एक दिन उस घर में आग लगने वाली. तो ये लोग क्या करते थे? रोज पांडव शिकार के नाम पे
पूरे अगल बगल के एरिया जो भी था उसको स्टडी कर लेते। डेली दे यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग और इन द नेम ऑफ हंटिंग दे यूज्ड टू स्टडी द होल एरिया एंड दे मेड अ स्मॉल होल through which a small tunnel like thing so that they can come out. Many times when you go to the forts, शिवाजी का यहाँ से पूना तक का टनल था, ये था, वो था. Please understand, these tunnels are not अपना एक मेट्रो लाइन बनाने में इतना साल लगता, हाँ? तो सोचो टनल इतना लंबा नहीं रहता है. It heads in that direction and after a few kilometers you come to the mainland where from there you have your horses or something by which you can gallop to your destination, nearest destination or fort. So this was declared. तो कि उनको पता था कि उनके उसको आग लगाने वाले हैं. And 3 सेवक, 3 people were kept ready. They were actually supposed to be servants, but they were not just servants, they were the agents of दुर्योधना. उनका काम क्या था? मौका मिलते ही आग लगाना. तो एक दिन ये लोग जब 5 सर्वेंट्स कर रहे, तो 5 सर्वेंट्स जब बैठे थे, दे वर ऑल ड्रंक. पांडवा सेड दिस इज द राइट टाइम, हम लोग भाग जाते हैं और इस घर को आग लगा देते, हम लोग ही आग लगाते. तो दे lit the fire themselves. And the whole house, since it was made of lac, and lac melts very fast, and it was all hay and dry grass with which it was made, so the house caught fire very nicely and दूध होके जलने लगा, and they quietly ran away through those places. This is what he is referring over here at this place. You had to saved us from the poisoning and from the arson. And the best part was, after they ran away, they decided, अब हम लोग यहाँ रहेंगे, हम लोग चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं. We will go, because as it is they want to always kill us. क्या रह के क्या करना है, हम लोग वन में रहते हैं. तो कुंती महारानी के साथ वो लोग सब वन में रहते हैं शांति से. तभी वो वो असुर जो बकासुर का लीला जो आता है ना, जहां पे भीम जाके उस बकासुर को मार देता है, वो लीला होता है. एंड टिल द्रौपदीज मैरिज दे वर अंडर कवर. किसी को पता नहीं कहां है पांडव, सबको लगा वो जल गए. एंड द बेस्ट जोक इज उनका श्राद्ध किया गया और उसमें सबसे ज्यादा रोए कृष्ण. हाय हाय मेरा भाई मर गया, हाय हाय मेरा भाई. सब मालूम है कृष्ण को, सब मालूम है, फिर भी सबसे ज्यादा रोया वही. मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मेरा भाई चला गया, मेरे लिए क्या जीवन में बचा है. एंड उठा के सबको दान भी कर रहा है. क्या करूं, क्राइंग, ओवर एक्टिंग. एंड एवरीवन वाज वंडरिंग कृष्णा इज क्राइंग. ऑफ कोर्स ऑल द्रोणाचार्य, ऑल द कौरवस आल्सो cried very hugely, very heavily, as if they lost someone, but it was all their plan. But till Draupadi's marriage, they were under cover. It was at the time of Draupadi's marriage when Arjuna displayed his archery, his skill of archery. That is the time the Pandavas again came back to limelight. वापस वो लोगों के नजर में आए. तब तक वो अज्ञातवास जैसे ही वो लोग होते थे. So if you see the Pandavas' life, pre and post, pre-marriage and post-marriage, childhood, पूरा जीवन उनका वन में ज्यादा गुजरा और राज्य में बहुत कम. मतलब राजसिक ठाट पाट के साथ बहुत कम जिए, ज्यादा करके वो वन में जिए. So that is what is being referred over here. Please, someone else reads. Rajesh, read. While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? My Lord. So here he is just inquiring about कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा, कैसे आप रहे. It's basic etiquettes what he is asking about. My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of God within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Please remember this, very important.
very important verse. My Lord, devotees like you, like your good self, are verily holy places personified. एक स्थान अगर तीर्थ स्थान बनता है तो उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ वो स्थान नहीं, जहां वहां पे रहने वाले भक्त की वजह से। अगर कोई भक्त, शुद्ध भक्त, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, किसी भी जगह पे चले जाए, वो क्षेत्र तीर्थ स्थान बन जाता है, वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। एंड बिकॉज यू कैरी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विद इन योर हार्ट, कि वो लोग भगवान से कभी भिन्न नहीं, दे आर ऑलवेज विद गॉड, दे आर ऑलवेज विद गॉड, they are never separate from God, and Lord is always sitting in their heart, and since God is there with him, see, for example, अगर आपने वृंदावन लिया, चित्रकूट लिया, द्वारका लिया, कोई भी धाम का नाम, रामेश्वर, कोई भी धाम, श्रीरंगम, कौन था वहां पे, क्या लीला हुई? भगवान का कुछ ना कुछ तो लीला हुआ है, मगर वहां उस क्षेत्र को बल कहां से मिला? भक्त से। अलवर्स आर नथिंग बट भक्त, प्योर डिवोटीज। सो प्योर डिवोटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑर्डिनरी गॉड। गॉड इज ऑर्डिनरी, गॉड इज वेरी ऑर्डिनरी, बिकॉज प्योर डिवोटीज आर कैरिंग गॉड विद देम इन देयर हार्ट। आज हम राधा मदन मोहन क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल? बिकॉज सनातन गोस्वामी यूज्ड टू स्पीक विद गॉड, ही वाज कैरिंग द डिटीज केम जस्ट बिकॉज सनातन गोस्वामी को देख के वो डिटीज भगवान के पास आ गए, मतलब सनातन गोस्वामी के पास आ गए और भगवान बोले चल मैं तेरे साथ चलता हूं। भले सनातन गोस्वामी बोले आई कैन नॉट फीड यू एनीथिंग, मैं कुछ को रूखा सूखा खिलाना पड़ेगा, he said नहीं आप चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू आई एम रेडी टू गो विथ यू। सिर्फ मिट्टी का, मतलब सॉरी आटे का, सूखा आटे का लिट्टी बना के खिला देते। एंड भगवान बोले कभी तो नमक तो डाला कर, आज नमक मांगेगा कल घी मांगेगा, बोला था पहले ही, ठीक, अपना नमक का बंदोबस्त खुद कर लेना, ठीक है कर लेता हूँ। फिर बोरी नमक का बोरी आ गया, व्यापारी गया रहा था इसमें यमुना में, उसकी बोट अटक गई, फिर आया यहाँ पे, बाबा जी बोले क्या कर सेवा करूं, कहा मेरा बोट अटका हुआ है, जाओ जाओ बोट निकल जाएगा, तुम्हारा नाव निकल जाएगा। और जैसे वहां गया नाव निकल गया, उस व्यापारी ने नमक की बोरियां लाके दे दी, तो बोला भगवान हाँ तेरा नमक का बंदोबस्त आपने कर लिया, ठीक, वेरी गुड। सो व्हाट डज दिस मीन? प्लेसेस आर बिकमिंग पावरफुल, a place becomes empowered only because of the pure devotees who go to those places and what they carry with them. That is why, please understand, one should be very very careful in going to धाम। कोई भी धाम में जाओ तो आप केयरफुल रहना चाहिए, वहां पे कोई अपराध नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई गलत कार्य एक्शन नहीं होना चाहिए। धाम अपराध इज वेरी डेंजरस। और धाम में रहो और गुरु के शरण में रहो, नो प्रॉब्लम। इन गुरु शेल्टर यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। In fact, in various places in Vrindavan and all, we see people are always, pure devotees are away from the crowd and the hustle and buzz. They are in the interiors. They are never sitting in the heart of the city and waiting for that chaat and kya hai wo? Lassis and momos and pizza. They are not interested. They are sitting somewhere in the interior because they are more concerned about the God in the heart. But we are in the material platform. तो हम लोग को क्या लगता है, कहाँ अच्छा पिज्जा मिलेगा, कहाँ अच्छा मोमो मिलेगा? अरे धाम में आके वो मत ढूंढो, भगवान को मेन what you miss in the city you miss momos, you miss pizza, you miss all this chatpata things, everything is available in the city. वहां जाके वो मत ढूंढो, भगवान को ढूंढो या भगवान के भक्तों को ढूंढो। भगवान के भक्त को ढूंढ लो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे एंड ज्ञान भी मिल जाएगा। I don't know how many of you all have heard the story of Ramanujacharya? How many of you heard the story of Ramanujacharya's life? You heard the story of
the king's daughter getting caught by ghost. Very powerful story. Once, nobody else knows Ramanuja story. Once Ramanacharya was studying under Yadav Prakash, and Yadav Prakash was in Bhutpur. He was born in Bhutpuri, and Yadav Prakash was a pakka mayavadi, but जादू टोना तंत्र सब आता था उसको, खतरनाक. तो अपना एक बार राजा की बेटी प्रिंसेस उसको एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया. There is a पूरा डिटेल मेंशन अबाउट ब्रह्म राक्षस. Who are these ब्रह्म राक्षस? And they are more dangerous than राक्षस. ब्रह्म राक्षस मतलब ब्राह्मण है मगर राक्षस बन गया. क्यों? अनाचार की वजह से. तो the king called many people. King is a rich man. He called many people. झाड़ फूक करा के किसी भी तरह बहुत राक्षस को निकालना है, निकलने को तैयार ही नहीं. एंड में प्रकाशानंद को बुलाया गया, यादव को बुलाया गया, आइए आप भूत निकालिए. तो गए तो उस रानी के अंदर जो स्थित भूत था एक चटा मारा, जोर से चाटा मारा और उसको बोला तू क्या मुझे भेजे, तू क्या मुझे निकालेगा, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अरे व्हाट डिड आई डू, हाउ कैन हाउ यू आर सेइंग लाइक दिस. इतना जोर का चाटा मारा है. तो बोला देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तू खुद क्या था पहले जन्म में पता है तुझे? यू आर ए कोबरा, स्नेक. अगर मैं स्नेक था तो हाउ डिड आई गेट द बर्थ ऑफ अ ब्राह्मण? सी ही वाज बिग मायावाद फिलोसोफर एंड ए ब्राह्मण, हार्डकोर ब्राह्मण. बड़े उसके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें एक शिष्य रामानुज, हेड द मेन आचार्य ऑफ श्री संप्रदाय. तो दैट टाइम द ब्रह्म राक्षस सेज तुम एक भक्त ने प्रसाद खा लिया और उसका जो कटोरा होता है ना, द्रोण होता है ना, द्रोण वो नीचे फेंक दिया. तुम सांप बन के उधर गए और उसको चाट लिए. ये एक पुण्य की वजह से तुम बन गए ब्राह्मण अगले जन्म में. दिस इज द इंपॉर्टेंस. ए प्योर डिवोटी का रेमिनेंस, उच्चिष्ट, थोड़ा सा कुछ बचा था, वो सांप बन के उसको चाट लिया, उसकी वजह से वो बन गया ब्राह्मण. देन ही टेल्स हिम but I am more bigger Brahman than you. I'm a Brahma Rakshas, so I am more Brahma. But because of I was also a Brahmin for the last 5 births. But since I did some अपराध, I become a Rakshas for that. और उसके लिए तो ये आस यादव प्रकाश आस, तो आप कैसे जाओगे उसका तरीका बताओ. He says I will go in only on one condition. तेरे वेरे तंत्र से मैं कुछ नहीं होने वाला है. I am more विद्वान, तुझसे बड़ा विद्वान मैं हूं. Go and get रामानुज एंड उसका उच्चिष्ट मेरे को खिलाओ, मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं आई विल गेट लिबरेटेड. व्हाट विल हैपन? आई विल गेट लिबरेटेड. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ प्योर डिवोटी. सी आज भी उनका लाइव बॉडी रखा गया है साउथ इंडिया में. वी ऑल सॉ द यात्रा, वी सॉ ना, उनका बॉडी अभी भी वैसे ही. नथिंग हैज हैपेंड, इट इज नॉट डिकम्पोज, नथिंग. 1000 years only camphor and चंदन का लेप लगा के रखा हुआ. So please understand how important a pure devotee is. Pure devotee का संग बहुत अच्छा. तानसेन, you all know Tansen, right? Who was his guru? And Haridas Thakur कौन थे? हाँ? प्योर डिवोटी. बट उनका खासियत स्पेशलिटी क्या है? सिंगर, वेरी नाइस सिंगर ऑफ द लॉर्ड. सो व्हाट डिड ही डू? तानसेन केम टू हरिदास ठाकुर. ही सेड आई वांट टू लर्न संगीत. ठीक, चलो स्टार्ट, रियाज स्टार्ट करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो. सा सा चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 12 साल सिर्फ सा, 12 साल तक. What does this mean? You have to be having that endurance.
persistency and endurance has to be there, and the faith that he will one day enlighten me. Tansen did not say क्या है 6 महीना हो गया 1 साल हो गया 2 साल हो गया साल. Few of my students earlier they left. Why? प्रभु जी हमको आगे सीखना है, we want certificates. छोड़ के चले गए. भूल गए कि उनके घर से साईं बाबा का फोटो मैंने उतारा. उनके घर से साईं बाबा का फोटो मैंने उतार के विष्णु का फोटो उधर मैंने लगवाया. They were zero, but when they came to this stage ना, I want to become faster. I want to. आपका स्पीड पे मैं नहीं, मैं मेरे स्पीड पे सीखूंगा. So 12 years he taught him only song. But one day, after 12 years, one day when Haridas Thakur was having his prasad, he ate the prasad fully. मतलब कुछ झूठन छोड़ा ही नहीं. और तानसेन को दिया पत्तल फेंक दो. तानसेन उसने सिर पे लगाया, बोला इस पत्तल को मैं खा जाता. And he ate that pattal. His guru saw this and immediately said, all the rags, ragini, everything, all the knowledge will come inside you. He did not learn anything. He was full of knowledge with entire music, whatever that, what do you say, rags and various ups and downs in the tone and all that. Everything he learned. He became perfect. कुछ नहीं किया उसने, एक झूठा पत्थर खाया. कहने का मतलब क्या है? Pure souls, or rather pure devotees, they carry Lord within, and because of that they have the power. That is what he is trying to tell over here. Baba, you are, and acha, how can one become carry God in his heart? Sure. What is the easiest way to carry God in his heart? बोलिए. Remembering all the time. Huh? Remembering God all the time. Remembering God all the time. Okay. One option. Okay. What else? Full surrender. No. What else? Please explain that. What is the meaning of this full surrender? Half surrender, full surrender, quarter surrender? क्या हो? Fully surrender. That's what I'm saying. What is the difference between quarter surrender, half surrender, and full surrender? पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो. बोलो. How do you understand your surrender? So last time you said to stop putting any efforts. That is Perfect. When you are totally dependent on God, then you are surrendered. जब तक द्रौपदी, when Draupadi Vasarana was happening, she was already half naked, but still she was trying to hold the sari. But the minute she realized कि अब ना मेरे पति, ना भीष्म पितामह, ना कोई भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई मेरा मदद नहीं करने वाले, she left. At that time only God intervened. And how did God intervene? Sari. How did he get sari का bundle carry करके लेके? Govind. हाँ? He said Naam, Govind. गोविंद. तो सारी कहाँ से? Naam. God is already present Naam. everywhere. हाँ? Naam root से. नहीं. That is only in the serial. In the form of sari. In the form of sari. The sari what she was wearing, that only extended. Because Vishnu तो हर अणु में है. विष्णु तो हर अणु में है. तो वो ही कपड़ा became expanded and she wound herself back. So कहने का मतलब क्या है? Surrender means one has to have total faith. But what happens in this material world? What do happen? What do we have? We have faith on everyone else, but not God. अगर कोई अपने पिता को रक्षक मान ले, then what happened in the case of Prahlad Maharaj? अक्सर पिता को रक्षक मानते हैं. आजकल तो ठीक है, कलयुग में फादर ओनली इज सेक्सुअली harassing the daughters. We are hearing the news and all that. That's Kalyug Prabhav. But still worse is, even in Satyug, the father
was behind the life of Prahlad. No one else was behind Prahlad. कोई प्रहलाद को मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी, भाई पे भरोसा है, मेरा भाई मदद करेगा. Who was that brother who ditched his own brother? Vibhishan and Ravan. दूसरा Bali is most important. Bali and Sugriv were a very good, best of the friends. But then in the end, situation the tables turned, and immediately he became his worst enemy. जान लेने पे आ गया, उसको मारने पे. या तो वो मरेगा या तो ये मरेगा, दोनों में से एक मरेगा पक्का. Then when it comes to mother, who is an example of that? Kaikeyi was not a bad lady. Huh? How many people think Kaikeyi was a bad lady? कितने लोग मानते हैं कैकेयी बुरी औरत थी? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं. हाँ, न्यूट्रल पार्टी. हाँ, उनके पर्सपेक्टिव से तो वो अपने बच्चे के लिए चाह रही थी. She portrayed that role. you still are under the basic understanding of Kaikeyi wanted her for her son's sake would send Ram to Vanas. राजपाट की बात. वही राजपाट के लिए ना, उसको ताकि उसके बेटे को वन में राज्य मिले. तो दशरथ ने तो कहा मैं तुझे राज्य दे रहा हूं, मैं तो भरत को राज्य दे रहा हूं, और राम को वन क्यों भेज रही हो? मैं राम को वन भेजने के मैं बोल ही नहीं रही हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको तुम्हारे बेटे को ही दे दूंगा राजपाट. Dasharatha gives this offer, but she says no, I want Ram for 14 years in the exile. ठीक है, that's a different issue altogether. Okay, it is not Putana, it is not Kaikeyi. It's a different. Kaikeyi was a very good lady. For a very specific reason, she sent him. She sent him because the whole episode goes like this. Kaikeyi gets the news that Ram is going to be coronated the next day. अगला दिन उसका राज्याभिषेक है. तो कैकेयी बैठी रहती है, सोच रही है चैर पे, और इतने में मंथरा ने ऊपर देख लिया और वो भाग के आई एकदम फिल्मी स्टाइल में, ललिता भवर. हाँ, नीचे आके क्या बोली? अरे तू सो रही है मूढ़ी, फूल. शी कॉल्स हर एड्रेसेस अ फूल. यू आर सिटिंग हियर पीसफुली एंड यू डोंट नो दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ स्लेव. ये वो पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर. एंड वो सब सुनाने के बाद ये कहती है, कैकेयी कहती है, अच्छा है मेरा राम राजा बन रहा है, ये ले गहना उठा के देती है उसको, एक मोती का माला देती है जिसको वो लेके उठा के फेंक देती है. तू एक औरत है, अपनी बर्बादी पे जश्न मना सकती है. ऐसा ऑल दैट डायलॉग बाय जीसस. दैट टाइम आचार्य से द रूल वाज इन दोज डेज, द रूल वाज कॉर्नेशन के वक्त, एट द टाइम ऑफ राज्याभिषेक, पूरा ये चक्रवर्ती राजा था तो उसका मैप, देश का मैप बना के उसको कपड़े में ड्रॉ करके उसको उसके जो राजगद्दी है ना उसके नीचे रख देता था, रॉयल थ्रोन, बिलो द रॉयल थ्रोन, एंड ओवर दैट हिज अभिषेक विल बी डन, सिंबलाइजिंग दैट ही वुड बी द किंग ऑफ द एंटायर कंट्री. बट शी इज कम फ्रॉम द रघुकुल, तो वो सोचती है हम तो रघुकुल रीत सदाचर्याय, प्राण जाए पर वचन न जाए. हमने वचन दिया है हम चक्रवर्ती हैं, बट हम लोग चक्रवर्ती नहीं है. क्यों? कुछ बरस पहले, 12 साल पहले ही, मतलब जस्ट 10 years बिफोर, विश्वामित्र मुनि तो राम और लक्ष्मण को लेके गए और मारी सुबाहु और ताटका को मारा. दैट मीन्स व्हाट? वहां पे उनका नियंत्रण नहीं था. दे वर नॉट इन पावर. That is why she specifically says, I want Ram to go to Dandak forest, because she says, first let Ram go and kill all these asuras, and then he can sit on the throne with the cloth, with the map drawn on it under his seat. That is the reason she is worried.
And then when Mantra says, no, Bharat should become the king, he is not worried. But the minute she says, राम को वन भेज दो, मंत्रा यू वेरी स्मार्ट, मेरे दिमाग में आइडिया आया नहीं कि राम को वन भेजो, चलो अभी मैं करती हूँ, तू जैसे बोली कि मैं करती हूँ. Then she falls. But of course there are many other understandings to that. But the bottom line is, don't be under this impression. So now mother is not the Rakshak, not in the case of Kaikeyi, neither in the case of Putana. Putana कहाँ से रक्षक? Who said Putana? कैसा रक्षक? वो तो बाहर से आई थी ना Putana. But she was still a mother, no? See, here we are discussing how father himself is taking the life of his son. Here mother Kunti. When Karna was born, for her prestige, उसका मतलब prestige को क्या बोलते हैं? इज्जत या उसमें कलंक ना लग जाए, हाँ उसमें कहीं कलंक ना लग जाए, उसके लिए उसने क्या किया? पुत्र को छोड़ दिया, चाहे कोई जानवर नोच खाए या कुछ भी भूख से मर जाए, उसने वो चिंता नहीं की, मगर भगवान कभी छोड़ते नहीं. लॉर्ड इज अ ट्रू प्रोटेक्टर. पूतना ऑल्सो, पूतना क्या अपना कुंती महारानी ऑल्सो सेंड करना, दो इट वॉज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, शी डिडंट शो एनी पिटी, बट मदर इज सपोज टू बी अ रक्षक. Mother is supposed to be greater than a father. As per the scripture injunction, if, I mean this is conditions apply, हाँ, ये रूल घर पे मत लगाना. हाँ, अगर फादर एक रूल करता है और उस वक्त मां उस रूल को ओवर रूल करती है, she has a right and that will be final. Father's rule can be overruled by mother. सब लोग क्या you don't have to worry, your wife is not coming, so you don't have to, you're saved. So the rule says mother is more powerful than the father. If a father gives, but same rule, the problem comes during Ramayana, when Kaushalya says, no, I am overruling it and I have the right to overrule it, I will overrule it. That time Ram says, had you told this at that time when Kaikeyi was telling, then this is applicable. My vanvas has already started, so now your words are not applicable. So there are terms and conditions which apply. So what I am trying to say is that powerful is a mother, but end में वही माँ कर्ण के लिए मौत का reason, मतलब he didn't die because of that, but she was so heartless. She was so heartless and she didn't save Karna. So father gone, brother gone, mother gone, अब बचा क्या? पत्नी से एक्सपेक्ट मत. So what is left? Only God. Only God is left. God is the only source of protection for everyone. So that person is surrendered. A person who is surrendered means what? Who knows उसकी रक्षा और कोई नहीं करेगा सिवाय भगवान. Even only that person will be protected with God, and such a person carries Lord in his heart wherever he goes. Wherever he keeps it, like Shukdev Goswami, wherever he went, he didn't wear even clothes because he was really in the soul platform. He was not in the bodily platform. We are still in the bodily platform. That is why when Shukdev Goswami, for 16 years, he was in his mother's womb. Everyone knows the pre-story of Shukdev Goswami, right? Shukdev Goswami को पहले की कहानी पता है ना? कौन थे वो? हाँ, तोता था. और जब कृष्ण ने अपना लीला खत्म कर लिया था, राधा रानी ने अपना लीला खत्म किया, तो उस तोते ने बोला मैं कहाँ जाऊं? तो राधा रानी ने बोला जाओ जहां पे कृष्ण की लीला हो रही हो, कोई बात कर रहे हैं वो जाके सुनो. और उधर कैलाश में
शिव जी पार्वती को भागवत कथा सुना। भागवत कथा मतलब कृष्ण कथा। कृष्ण की कथा में, भागवत की कथा में पहला 9 स्कंद में कौन है? ओनली भक्त हैं। भगवान की कथा सिर्फ 10वें स्कंद में आती। तो भगवान की कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बस। सो द पैरेट वेंट टू अमरनाथ। वहां पे शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही हैं, और थोड़ा थोड़ा सुनने के बाद जैसे क्लास में कई लोग सोते हैं, सोने लगे। तो जैसे वो सो गए तो शिव जी बोल रहे हैं, आंख बंद करके बोल रहे हैं, इज गोइंग ऑन सेइंग, एंड सडनली he realized the voice stopped coming. Immediately Shuka, who was listening to the entire Bhagavad Katha, he started singing, because and parrots are very expert in imitating the voice. So exactly like Parvati Mata ji बोल रहे हैं, and कथा चल रही है, शिव जी कथा बोल रहे हैं। So पूरी कथा हो गई, आंख खोल के देखा पार्वती सो रही। फिर कौन हूं बोला, देखा Shuka took his trishul and charged at him, and Shuka flew रेस, एंड शुका जाके सीधा भाग के क्या किया, कहते हैं व्यासदेव की वाइफ उधर बद्रिका आश्रम में जोर से जमाई ले रही थी, सीधे उसके मुख में चली गई, सीधा मुख में चला गया और सीधा पेट में गर्भ में जाके, एंड शिव जी केम रनिंग। व्यासदेव said, what happened? Why you came running? I'm not going to leave that bird. I'm going to kill him. Quietly he was listening to my Bhagavad Katha. सुन लिया ना, और भागवत सुनने के बाद आप किसी को मार ही नहीं सकते, वो अमर हो गया, आप नहीं मार सकते, जाओ। Then he pacified Shiva and sent Shiva back. And here, and how does that Shiva Parvati this thing start, dialogue start? The situation comes. Narad Muni goes and asks Parvati about the spell. Yes. नारद मुनि, पहले एक्चुअली द होल सिचुएशन वाज, नारद मुनि एक बार शिव जी को मिलने आए, मतलब शिव जी हैं, आप रुकिए, नहीं नहीं आता हूँ थोड़ा देर बाद। एक्चुअली मुझे आपका बारे में बहुत चिंता है। क्या हो, नारद मुनि का ऐसे है ना, गुड़का हाँ मिर्ची लगा के चले जाते हैं, माचिस लगा के। तो पार्वती बोल, क्या हो गया, मेरे बारे में क्यों चिंता? नहीं नहीं आप बहुत बोली है, आप बोली, एवरी लेडी थिंग्स, मैं बोली। तो इमीडिएटली से देखो, आप पति की इतनी सेवा करते हो, अगर आपसे तो सब बात शिवजी बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। मतलब क्या छुपा के रखते हैं? नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ, सीक्रेट है। पत्नी और पूछेगी, नहीं नहीं आप बताओ, मेरे पति का सीक्रेट है, आपको पता है तो बताओ। कभी नारद मुनि के पास है, तो उन्होंने बोला, देखो आपका जो पति है ना, कभी आपने पूछा उसके गले में इतना मुंडियों की माला कौन सी, कौन सी मुंडियों की माला पहन के घूमते, कभी पूछा आपने उसको? इमीडिएटली पत्नी का दिमाग चालू हो गया, आने दो शिव जी को, ऐसे अच्छा मैं जाता हूँ, बाय बाय। नारद मुनि चले गए। पत्नी मतलब शिव जी आए, वहां घर पे आया, देखा पत्नी बैठी है, थोड़ा मूड जरा अलग है। बोला क्या हो गया? मतलब आप मुझसे सब बात बताते नहीं हो, कुछ छुपा के रखते हो। अरे मैंने तुझसे क्या छुपाया? नहीं तो मेरे से कुछ छुपाते हो। आपके गले में ये मुंडियों की माला किसकी मुंडी है? किसकी मुंडी लगा के घूम रहे हो? मतलब यू लव दैट मोर देन मी, मतलब ये तुम्हारा ही मुंडी है। व्हाट? हाँ क्या तुम्हारा ही मुंडी है? क्योंकि तुम जन्म लेती रहती हो। मैं परम भागवत, परम भक्ता ऑफ गॉड, तो मैं का मेरा तो कभी जन्म नहीं होता है, बट यू कीप ऑन डाइंग एंड ईच डेथ, ईच स्कल इज योर्स ओनली। आई लव यू सो मच दैट आई मेड ए नेकलेस ऑफ ऑल द स्कल्स। तो पार्वती कहती ऐसा कैसा कि मैं मरती हूं तुम नहीं मरते हो? तब ये भागवत कथा बोलते हैं। दैट इज वाई लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं, मगर उस अमरनाथ यात्रा की महत्वता किसी को पता नहीं। वहां पे वो शिवलिंग होता है, आइस का शिवलिंग होता है, आइस का शिवलिंग होता है। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गोइंग टू अमरनाथ टू सी द आइस का शिवलिंग।
That is the place where he spoke Bhagavatam to Parvati. That is the relevance of अमरनाथ. तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई अमरनाथ यात्रा करे तो समझ के करना, ऐसा नहीं सब लोग जय बम बोले गए उधर, क्या कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Then when see where am I am sports from Bhagavatam, I am going to some other Puran, Shiv Puran and all that. So finally हाँ कैलाश तक चला गया मैं. हाँ होली. तो दिस इज वेयर होली प्लेसेस, either Lord's Leela or Lord's devotees. So that is how. So Shukdev Goswami was there in his mother's womb for 16 years. Mother was bearing the pain, and then Vyasdev said, "Please come out." He said, "Sorry, I will not come out. If I come out, Maya will catch me." Arey Baba, Maya will not catch you. नहीं, I know, I'm sure. Finally, he goes and calls Dwarkadish. कृष्ण को बुलाते हैं, आप आके बोलो तू बाहर निकलेगा. तो कृष्णा gives him assurance, नहीं तुम बाहर आ जाओ, you won't have any trouble from Maya. उस assurance पे Shukdev Goswami comes out of his mother's womb. He just cuts the umbilical cord, wraps it around his neck. जो umbilical cord को हिंदी में क्या? नाल को काटते हैं, अपने गले पे लपेट के सीधे चल जाते हैं. ना माँ को थैंक यू बोला, ना पिताजी को थैंक यू बोला, कुछ नहीं, सीधे. 16 साल तक बेचारी माँ ने अपने घर में संभाला, फिर भी वो चले. पीछे पीछे व्यासदेव भागते हैं, अरे पुत्र रुक जा, रुक. सब पेड़ पौधे सब सुन रहे हैं, बट ये बिना सुने जा रहे हैं. और जिस रास्ते पे जा रहा था वहां पे कुछ कन्याएं, लड़कियां नहा रही थी. एंड व्हेन Shukdev Goswami, young boy of 16 years, went from there, वहां से जा रहा था, तो इन कन्याओं को ऐसा नहीं लगा कि हमको अपना शरीर को ढकना चाहिए. They knew that he is really virakta. But the minute Vyasdev came, an old man, more older than their father, their grandfather's age, when he is coming, these ladies went and immediately put down their, covered themselves with clothes. So Vyasdev stopped and asked, मेरा लड़का गया, उसको देख के तुम लोग ने अपना शरीर को नहीं ढका, और मुझको देख के जो मैं तुम्हारा पिता या दादा के समान हूं, और तुम मुझे देखकर कपड़े से ढक रही हो और शर्म कर रही हो, क्यों? That time the lady said, your son is a true virat, and he is not in the bodily concept. We can see, मतलब उसके चेहरे से हमको पता चलता है, उसके देखने के, उसके हाव भाव से पता चलता है कि वो इस बॉडीली कॉन्सेप्ट पे नहीं है, शारीरिक स्तर, शरीर के स्तर पे नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे. मगर आप भले इतने बड़े हो, ज्ञानी हो, सब हो, बट फिर भी आप एक गृहस्थ की तरह हो, इसके लिए आपसे हमको शर्म करना. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. Shukdev Goswami was carrying the Lord in the heart. That is why he was not aware of the surrounding. We are aware more of the surrounding than about the work. That is the difference between a devotee who carries the Lord in the heart and a pseudo devotee who chants Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So if you want to carry Lord in your heart, you have to become serious in your डिवोशन. आपकी भक्ति में आपको थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा आपका भक्ति स्ट्रांग जब करोगे, सीरियस रहोगे. सीरियस मतलब क्या करना, क्या 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पहला फॉलो करना. इंद्रिय तृप्ति का जो लगा हुआ ना, खींच ना, उसके कंट्रोल. अभी नवरात्रि गया, everyone had a chance to go once, twice, thrice. इसलिए भगवान ने भी देखा, अच्छा ये सभी ये लोग मेरे लिए तो आते हैं, हाँ ये लोग सब नाचने के लिए आ रहे हैं, ठीक है बाहर जाओ. So what was thing? Because we are only trying to make every spiritual activity into an activity of sense gratification. उसके पहले गणपति था, activity of sense gratification. Every activity, every spiritual activity which is supposed to enhance your detachment to material life, we are using it to
enhance our material attachment. We're only using it to enhance. Whereas every spiritual activity in any religion, be it be Christians, they have the season of Lent. You go to the Muslims, they have the season of that Rosa, whatever it is, where the whole day they are detached from this. And then what do we do? In the night, whole night, what do they do? Then what is the use? We are also, whole Navratri, you are supposed to be detached. उपवास करके आपको भक्ति से आपको माता का पूजा करना है, जो भी करना है, ठीक है, इट्स अ डेमिगॉड वर्शिप, बट जस्ट नो एटलीस्ट यस सेंस ऑफ डिटैचमेंट इज सोड, बट वही नहीं है. द कोर इटसेल्फ इज मिसिंग. एवरी फेस्टिवल हैज टू कैन बिकम अ वी हैव गॉट अ रीजन टू एंजॉय मोर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. So with this you can never carry God in the heart, and you cannot become a pure devotee. If you don't become a pure devotee, wherever you go, you cannot make it a place of pilgrimage. So if you want to make your house also a place of pilgrimage, not just deity and deity worship, you need to carry Lord in your heart, and that is possible only when your heart is on Lord and not on material things. भौतिक चीजों पे अगर आपका दिल लगा हुआ है तो भगवान पे नहीं लग सकता. दिल एक ही है, दो नहीं है. और हमारे दिल पे तो कंपार्टमेंट ही कंपार्टमेंट. कितना कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट हो तो ठीक, और एक उसमें से स्पेशल एक अपना अलग अपना कंपार्टमेंट है. एक वाइफ के लिए, एक बच्चे के लिए, एक इसके लिए, उसके लिए एक पर्सनल कंपार्टमेंट. पहले उसको मिटाओ. रिमूव दोस कंपार्टमेंट्स एंड प्लीज हैव विद वाइफ हैव गॉड, विद सन हैव गॉड, विद चाइल्ड हैव गॉड. Whatever it is, your office, your job, your this, all things के साथ peace have. And करना कैसा है? बहुत आसान. How can we have God in all the compartments of life? Come on, fast 2 minutes. कैसे आप भगवान को हर कंपार्टमेंट में लगा सकते हो, या अपने हर मोड में रख सकते हो, या जीवन में पूरे दिन में आप दिनचर्या में भी रख सकते हो. कैसे रख सकते हो? कितना बार समझाया. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च. व्हाट डिड कृष्णा टेल अर्जुन? तस्मात् सर्वेषु कालेषु. गॉड क्लियरली से 3 श्लोक का पहला बोलते हैं, 2 श्लोक का पहला बोलते हैं. यम यम वापि स्मरणम भावम त्रजातंत कलेवरम तम तम एवति कौन्ते सदा तत् भाव भावित. उसके पहले क्या कहते हैं? अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समुद्भव यातना संशयः. व्हाट डज ही से? जो अंत काल में मुझे याद करेगा वो भगवान के, वो सीधा मेरे पास आ जाएगा, वो भवसागर तर जाएगा. सेकंड, मेरे पास नहीं लगाया मन तो यम यम वापि भावम, जैसा उसका मन लगा हुआ है वैसा वो फल देगा. एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु. क्या करना है? आप बोलेंगे प्रभु जी क्या काम धंधा नहीं करना है, मेरे को ऑफिस करना है, मेरा बिजनेस है, मेरा नौकरी है, बीबी बच्चा सबको संभालना है, तो क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, मुझको याद करते हुए, सभी समय पे मुझे याद कर में. युद्ध च. डोंट वरी, ओनली अर्जुन इज नॉट फाइटिंग द वॉर देयर. वी आर ऑल्सो फाइटिंग अ वॉर एवरी डे. A war for money, a war for relationship, a war for some name, fame, power, whatever it is. We have a war daily and new war. उधर तो एक enemy is fixed. यहाँ पे तो रोज नया war. The boss comes with a new problem. तस्मात् सर्वेषु कालेषु. Immediately you should remember. सुबह उठा नहीं यार, आज तलवार लेके आज बॉस का. But भगवान भी याद करते. So you should always remember God, and that is how you can always carry Lord in your heart. Okay? Okay. With this, we'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.